हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज मैंने बड़ी मुश्किल से जो ना मोहम्मद से टाइम लेके उसको बैठाया नूर के साथ, क्योंकि मैंने मोहम्मद से कुछ इंटरेस्टिंग बातें करनी थी, तो आई थॉट कि मैं आप लोग सब लोगों के साथ भी शेयर करूँ। सो लेट्स सी व्हाट मोहम्मद सेज। That's Mohammed. Mohammed, can you do your intro, please? What's up, guys? Welcome back. You guys, she just stole my bed, so Oh my God. please go down in the comments and say, save Muhammad. She stole my bed. She stole my bed. Save Muhammad in the comments now. Alright, so this is like some sort of video about relationships and siblings. She is actually my older sister. Oh really? Oh, I am actually, yeah. Okay. Well, she's some sort of figure of my mom, but Your mom? Okay. yeah, she's a figure of my mom, not my actual mom. Okay. Anything else is that this is not drip. This is drip. That is Okay. Yes. if you guys don't know, and I hope you guys do know, sibling relationships is important because, well, they're your sibling. Yeah. And, well, I don't know if it's just me, but I'm the best relationship not. Are you lying? You're not lying, Mohammed. You said we have no good relationship with each other, right? Well, sometimes. Are you sure? Yeah. Okay. Alright, guys, but before I continue, if you have ever went across a TikTok named TikTok Robloxian, Yeah. Do not forget to visit my brother's TikTok. TikTok or TikTok account? Robloxian TikTok. Hey, yo, what the touch me? Oh, no. Stop it. Hey, yo, stop touching me. Noor, You're move. sussy. You're Okay. sussy. Also, comment down below. She's sussy. What does that mean, Saucy? She's sus. What's that mean? She's weird. Oh no, Mohammed. Uh, Well, we was talking about why siblings relationship yeah. is so important. It is so important. Although we have a really big age gap, like you, me, and Noor. Yes. I'm 9 years old. Yeah, and I'm like young adult, so you are like 9 years old, and Noor, she's You like, have already hit puberty. yeah, I did already because I'm young adult, like I just said. So what we're saying is, it doesn't matter if you have like big age gap with your siblings, as long as you make your relationship with them, things are easier, isn't it? Yeah. But before. Always like say Muhammad, like could you say something to people, or you can give a message, like you and me, we have like a Alright, big let me age tell you something. difference. Let me tell you So something. how we manage our relationship as siblings with bigger age gap? Okay, let me tell you. So, Yeah. it's not just, I know it's not just me, Yeah. but if you're someone like me, Uh-huh. you are probably by now seen Bed Wars. And if I will spend all day on it. I could spend all day on it. Yeah. She doesn't allow it. She doesn't want me to do that. Yeah, because I have some mental sort of- health issues. Yeah, mental health issues. It's just not only mental health issues. It's more about like your own, Also, before screen time is a big concern. Honestly, for me, it's not a problem as long how much time you want to spend. But again, screen time is a big issue, honestly, and that's just make me concerned all the time. Guys, that's the end of this message from me and from Mohammed. Right, Mohammed? Would you like to say anything at the end? Alright, so Yeah. What? a quick topic. Yeah. If we have, is this the outro? Is this where we end the video? Yeah. We just something for Alright. the people. A message. Alright, so if you have ever watched my videos, Yeah, in a TikTok, right? yeah, TikTok Robloxian, remember to hit a follow there. I have 60 followers right now. Wow. She makes banger videos. I make banger videos. Probably not better than any others. Yeah, but it still is a good attempt. It's isn't it? alright. Yeah, that's alright. We had absolutely If you have fine. ever watched my videos, Yeah. you know my signature outro. And What? I'm gonna do it right now. Right now. Let me okay. sit up. Alright. Yeah. Alright. Alright, that should be it for today, guys. I'm out, gang! Okay, Mama, thank you very much for sharing this here. I appreciate that. We will speak to you very soon, yeah? चलें जी गाइस, अब मैं आप सबके साथ एक बड़ी ही अमेजिंग जो ना सैलड की या जो भी आप कहना चाहें इसकी रेसिपी जो शेयर करने लगी हूँ। तो ये है बेसिकली हाई प्रोटीन सैलड। आप लंच में भी इसको बड़ी इजीली कॉपरेट कर सकते हैं वेजिटेबल्स के साथ,
अपनी चॉइस के साथ जो भी आपको अच्छी लगती हो। तो आज क्योंकि इफ्तारी के टाइम पे प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है खाने के लिए, एंड आई एम श्योर कि अगर आप प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करें तो यू विल डेफिनेटली सी द डिफरेंस स्ट्रेट अवे। तो आज चिकन ज़ाहिर है नहीं था, तो मैंने सोचा चिकन लेने जाना पड़ा, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट द चिकन। तो ये चिक पीस पड़े हुए थे तो मैंने इन्हें बॉयल किया, और इसकी जो है ना ये बड़ी सिंपल और बेसिक सी रेसिपी है। तो जी बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने इस डाइस किए हैं कुकम्बर्स और टमेटोज़ को, और जो चिक पीस इनको पहले बॉयल करना था, ठीक है। अगर तो आपके पास यखनी या ब्रॉथ वगैरह है तो आप उसमें इसको बॉयल कर लें, ये वेल डन आई मीन बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आप इस तरह ये कर लें, ठीक है। इफ़ नॉट तो आप नॉर्मली इसको बॉयल करें, और एक पैन लें, उसमें आप 1 टेबल स्पून जो प्योर देसी घी या बटर ऑयल व्हाट्सएवर यू हैव आप उसको यूज़ करें, ठीक है। वो 1 स्पून डाल के उसके अंदर आपने फिर स्पाइसेस अपने ऐड करने हैं अपनी चॉइस के, मे बी ज़ीरा, सॉल्ट, पेपर, तंदूरी मसाला, इस तरह की जो भी चीज़ें, जो भी स्पाइसेस आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो ये ज़रूर डालना है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू विच टाइप ऑफ स्पाइसेस यू लाइक द मोस्ट, वो अपने स्पाइसेस में डालना है, ठीक है। द पर्पज़ इससे फिर आपके जो स्पाइसेस हैं वो ब्लेंड हो जाएंगे ऑयल के अंदर या घी या जो भी आपने यूज़ करना है, ठीक है। और बहुत कम सा आपने ऑयल या बटर या घी जो भी है यूज़ करना है, ठीक है। 1 टेबल स्पून मैंने सिर्फ यूज़ किया था, और उसमें मैंने फिर एक तरह से इसको फ्राई कर लिया था, जो है ना फ्राई इन द सेंस थोड़ा सा 5 मिनट के लिए चिक पीस को। वो करने के बाद फिर मैंने इसे डिश आउट किया, ठीक है। अब मैंने डिश आउट किया तो आप देख सकते हैं कि अब मैंने कुकम्बर्स और टमेटोज़ ऑलरेडी डाइस करके रखे हुए थे, और इसके साथ साथ ही इसमें मैंने कुछ जो है वो मैक्रोनीस भी अंदर ऐड की हुई थी, जो कि इतनी ज़्यादा मैंने इतनी नहीं डाली थी, लेकिन वो भी अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसको सेपरेट से बॉयल करके और इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। इसमें अब आपने जो स्पाइसेस या सॉसेस ऐड करनी थी उसमें तो मैंने आज क्योंकि दूसरी वाली जो सॉस है वो ख़त्म हुई थी, तो फिर मैंने टमाटो केचप यूज़ किया, चाट मसाला यूज़ किया, और एक दो और जो है ना सीजनिंग जो नॉर्मल स्पाइस होता है वो यूज़ किया। और इन सब को अब जो है ना अपने मिक्सिंग का टाइम है। वेल जैसे कि मैंने भी बताया कि इफ्तार के टाइम बहुत ही जो करीब था, तो उस टाइम पे फिर मेरे से ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, तो आई लिटरली जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उनको बस मैंने जो है ना यूज़ करके तो ये सैलड बनाया। तो इसको मैं जैसे अभी अपने लिए सर्विंग 1 जो है ना रेडी करी थी। इसमें आप जब अपने लिए सर्विंग करें या आपको किसी तरह से भी अच्छी तरह से डिश आउट करना हो, तो आप इसमें और चीज़ों की भी जो है ना कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मे बी आप योगर्ट ऐड कर सकते हैं या कुछ इस तरह की और भी चीज़ें। तो ये एक बहुत अच्छा ईजी हेल्दी जो है ना ऑप्शन है, स्पेशली इफ़ यू आर ऑन फॉर एनी पर्टिकुलर कंसर्न्स अबाउट वेट लॉस और समथिंग, दिस इज़ रियली गुड। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें और आपने मुझे बताना है। और ये जो ब्लैक चिक पीस होते हैं या वाइट, ये बहुत अच्छे होते हैं। ये इज़ वेरी हेल्दी वीगन प्रोटीन ऑप्शन। इफ्तारी करने के बाद ये मिडनाइट के जो है ना टाइम में डिनर कर लिया हुआ था, तो मैं कुछ पढ़ने वाला था। मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट मैंने पहले भी बताया आपको वीडियोस में कि उस पर मेरा काम चल रहा है, तो पढ़ते हुए तो फिर आपको भूख लग जाती है, तो साथ में बजाय कि चिप्स वगैरह खाने के या इस तरह की चीज़ें, तो फिर मैं फ्रूट्स तो ले लेती हूँ और वो खाती रहती हूँ, ताकि मुझे जो है ना फीलिंग आती रहेगी फीलिंग की होने की। तो जी ये फिर इसी डे की थोड़ी सी क्लिप्स हैं कि मैंने सैलड के साथ साथ जो है ना वो फ्रूट चाट भी थोड़ी सी बनाई। और फ्रूट चाट में आज मैंने क्या किया, उसमें भी कुछ इतनी हार्ड एंड फास्ट कोई भी चीज़ नहीं थी। एवरीथिंग जो बेसिक होता है सेम चीज़ें हैं वही मैंने अंदर ऐड की हुई थी। और क्योंकि जब मुझे ये लगता है कि ऑनेस्टली जब मैं किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस होती हूँ, तो मुझसे एक टाइम पे जो है ना 3 से 4 चीज़ों से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। वो 3-4 चीज़ें मतलब ये कि मगर मैं आज मतलब लास्ट वीक से मैं लगी हूँ प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो मेरे पास उस तरह से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता कोई भी इतना अच्छा इस तरह से कोई भी ऐसा काम की इतनी डिटेलिंग में करने का। तो ये खैर मैंने इफ्तारी से पहले ही जो थोड़ी सी ये जो है ना मैंने सोचा कि ये मैं करके रख दूँ, और बनाना तो फिर ज़ाहिर है जब सर्विंग का टाइम होता है तब भी मैं अंदर जो है ना काट के डालती हूँ। तो भी बस मैंने बनाना ऐड किया और जूसेस वगैरह ऐड किए, तो मैंने ये पूरा बना लिया था। और उसके बाद जब टाइम आया रखने का, तो पापा को मैंने कहा कि आप करें टेस्ट, तो उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इसमें तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा, तो लगता है कि उसमें मैंने जूस वगैरह नहीं डाला हुआ। मैंने कहा मैंने डाला है, लेकिन पापा कहते नहीं इसका आज वो टेस्ट नहीं है, इसमें वो स्वीटनेस नहीं है, तो एक और जाके ऑरेंजेस में डाल के आओ। तो फिर ये वाले जो ऑरेंजेस थे वो पापा पता नहीं किसी शॉप से लेके आए हुए थे, जो कि एक अच्छे थे, नॉर्मली उस तरह के टेस्ट के तो नहीं मिलते हैं खैर। और यहाँ पे जी चाट मसाले वाला मसाला तकरीबन ख़त्म हो गया हुआ था, लेकिन शुक्र है आज का काम इससे चल गया। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मैंने पहले जो है ना 2-3 दफ़ा बना लिया था, और मतलब कि मैंने पहले जब इसको सारा रेडी करके रखा हुआ था, पर इसमें जब ऑरेंज जूस था ना ये कम था, तो फिर पापा ने मुझे कहा दोबारा ऐड करना है। तो उस टाइम पे फिर मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया, लिटरली मैंने वो जो पहले वाले पड़ा था बस उसको स्क्वीज़ करके
और छोड़ दिया और मुझे लग रहा था ये बहुत बोरिंग है मैं। और ऑनेस्टली रमज़ान जो है ना बहुत अच्छा गुजरा है, बट इसमें ये चीज़ें कर कर के ना मेरा अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑनेस्टली मुझे ये चीज़ें बहुत बोरिंग लग रही हैं, रोज़ फ्रूटा बनाओ, ये करो वो करो, इस बोरिंग। क्योंकि ये इंसान की नेचर भी आई बिलीव के जब आप एक काम एवरी सिंगल डे करें ना तो हमारी अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकली हम उससे से बहुत ज़्यादा जल्दी बोर होना शुरू हो जाता है। आज तो मेरा लिटरली ये इस काम पे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था और बस मैं आज काम कहते हैं ना जैसे आप अपनी जान छुड़ा रहे हो, दिस सेम सिचुएशन मेरे साथ यही थी कि आज मेरा किसी तरह से भी मैं फोकस नहीं हो रही थी। तो बस यही था कि रोज़ा खुले, खाएं पिएं और रेस्ट करें और जना नेक्स्ट डे की तैयारी करें। तो पापा ने मुझे 2 से 3 चक्कर लगवाए और उनको जो है ना वो लग रहा था कि इसमें स्वीटनेस की कमी है। पहले तो मैंने सोचा शुगर डाल दूँ, मैंने शुगर से ज़्यादा अनहेल्दी हो जाना है, ये इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो फिर उनके कहने पे हर जो है ना मैंने डाला। और मेरा ये इस तरह के जो ऑरेंज होते हैं ये फुल ऑफ फाइबर होते हैं, अगर आप इनका जूस निकाल लें तो लिटरली इसका फ़ायदा फिर क्या हुआ जब आपने फाइबर ही नहीं साथ लेना। तो अभी मैं जैसे बताया कि इतनी दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कोई चीज़ बनाने का और मैंने इसको सिर्फ हाथों से स्क्वीज़ किया, जूस निकालने की कोशिश की और मैंने कहा बस अल्लाह बेहतर करे, आप जो भी है ना हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो मैं इस पर कुछ भी नहीं करूँगी। लाइक जस्ट दैट कि मेरा जो है रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है और उस पर क्या है मैं इतनी ज़्यादा रिसर्च और सारा दिन जो है ना लैपटॉप पे बैठे रहना और बुक्स पढ़ते रहना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आई मीन कोई भी बंदा स्टेज पे हो तो यू फील योर सेल्फ टू ओवरवेलम्ड, राइट। तो फिर होता है क्या है कि आपको दिल करता है कि आपको ब्रेक मिले। इसलिए मैं जब भी इस तरह की कोई काम करी तो मैं मूवमेंट ब्रेक के लिए ज़रूर उठती हूँ, मैं बाहर चली जाती हूँ। इवन कि मुझे बाहर काम ना भी हो ये फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर बाहर चला जाना चाहिए। एक तो वॉक अच्छी हो जाती है, ऊपर से मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जैसे कि वेदर अब अच्छा है तो वेदर का भी एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारी लर्निंग पे, फ़िज़िकल हेल्थ पे भी अगैन। और जैसे कि आजकल की रूटीन्स हैं, ईस्टर हॉलीडेज़ हैं, फाइनली लास्ट वीक रह गया है, वी आर वेरी क्लोज के इनके स्कूल्स और वगैरह वगैरह खुल जाएंगे तो एक अच्छी सी रूटीन अगेन सेटअप हो जाएगी। तो आज खाने में क्या पका हुआ था, उसमें थे वेरी बेसिक वेरी बेसिक जो है ना वो खाना पका हुआ था, लैम्ब एंड पोटैटोज़, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये थोड़ी सी क्लिप्स है नेक्स्ट डे की। और इफ़्तार में मैंने इफ़्तार कर ली थी और उसके बाद मैंने जो है ना रोज़ा वगैरह खोल किया और फिर मैंने सैलड में अपने लिए बनाए थे पाइनएप्पल्स, स्पिनच और ग्रीन एप्पल्स। और जी ये मिडनाइट का था टाइम है जब रोज़ा खुलने के बाद सब बैठते हैं। तो पापा खाए थे वाटरमेलन, हमारे घर तो वाटरमेलन अब आना ही आना एवरी सिंगल डे। तो इस तरह इफ्तारी करने के बाद ग्रीन टी या चाय, ये तो 2 चीज़ें मस्ट हैं, तो ग्रीन टी आई प्रेफर। तो मैंने भी फिर पापा का ग्रीन टी पी ली। और अब ये थोड़ी सी क्लिप्स हैं नेक्स्ट डे सहरी के। और इसमें अंडे पड़े हुए थे लेकिन जो है ना लेजीनेस इतनी हुई थी कि जो है ना ऑमलेट बनाने का दिल नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने जो इन्हें टोस्ट लेके और दाल वाला सालन लेके सहरी की। ना इवन 2 ग्रैनुलास भी थे और वीटाबिक्स पर मैं सोचा कि इसका कोई मेरा दिल नहीं है, मैं यही खा लेती हूँ जो जल्दी जो चीज़ मिल जाए क्योंकि टाइम ऑलरेडी कम था। तो फिर जी चाय का कप लिया। और नॉर्मली मैं जो चाय है अगर आपने नोटिस किया तो मैं खाने के फ़ौरन बाद नहीं लेती हूँ, तकरीबन हाफ़ एन आवर के बाद ही इस तरह करके थोड़ी सी मतलब फ़ौरन नहीं पीती हूँ। आई बिलीव कि जब आप खाना खा के फ़ौरन से चाय पीते हैं ना तो वो एक बहुत सी डिस्टर्बेंस होती है और इस तरह पीनी भी नहीं चाहिए, ये रिकमेंडेड नहीं होती है, ठीक है, अगर आप फ़ौरन खाने के बाद चाय पी लें। तो जी सारे काम साथ साथ। लेकिन ज़ाहिर है मैं मोहम्मद को इतनी दफ़ा कह रही थी कि तुम्हारी हॉलीडेज़ हैं और इन हॉलीडेज़ में जो तुमने ना अपनी असेसमेंट की प्रेपरेशन करो जो सेट्स टेस्ट होते हैं, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। एज़ यूजुअल उसका अपना एक ही काम था कि या तो मैं जो है ना कुछ प्ले करूँगा तो या मैं मतलब टीवी पे कुछ देखूँगा। तो वेल वो उसको मैंने जो है ना बैठाया हुआ था वैसे ही, क्या थोड़ी देर बैठे टीवी वगैरह से ऑफ़ करवाया हुआ था और जी मैं फिर गई बाहर। और आज पता नहीं क्या हुआ है कि मैंने इतने अनकंफर्टेबल जूते पहन के बाहर वॉक करने क्यों गई थी, क्योंकि ये मैं जब भी ये वाले जूते पहनती हूँ इस तरह की कोई भी शूज़ हो आई डोंट नो मुझे ब्लिस्टर्स बड़ी जल्दी लगते हैं बैक पे। तो अभी भी मैं देख भी शायद आपको भी नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये मैं जितनी देर जूता पहने से मुझे इतना तंग किया कि मैं बता नहीं सकती। ओके जी गाइस, अभी मैं आई हूँ बाहर और आज मैं सुबह से जो है ना कर रही थी अपना बड़ा ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम। तो आज मैंने सोचा थोड़ी सी ब्रेक लेती हूँ, बाहर जाती हूँ, फ्रेश एयर और जो मुझे कोई 2-3 चीज़ें भी लेनी थी सुपरमार्केट से। तो मैंने सोचा चलो वॉक हो जाएगी, तो चलो मैं चली जाती हूँ बाहर खुद ही। तो अभी मैं बाहर आई हूँ, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है और इतना अच्छा लग रहा है बाहर आके, बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, बहुत प्लेजेंट जो है ना वेदर है, इट्स रियली गुड आउटसाइड। तो जी फिर मैं गई हुई थी एक सॉस बनाने के लिए जो है ना कुछ हर्ब्स लेने के लिए लीडल से। तो हर्ब्स में क्या, मैं पार्सले लेने के लिए गई थी और
मुझे वो तो नहीं थे नज़र आ रही, लेकिन मुझे दिल टाइप वाली कोई चीज़ नज़र आ रही थी। आई डोंट नो, ये मैंने कभी भी हमने हब्स यूज़ नहीं किए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थी। और पार्सले मुझे कहीं से इतने नज़र नहीं आ रहे थे। आई डोंट नो कि मैं शायद थोड़ी ब्लाइंड हुई थी, क्या वॉक मुझे तो नज़र ये नहीं आया। कंप्लीट मैंने तकरीबन कर लिया है 45 मिनट्स की वॉक, एंड आई थिंक सो दैट्स प्रीटी मच इनफ। और इसके साथ साथ ही मुझे बिल्कुल जना भूल गया हुआ था कि अपने साथ वॉच पहनना, ताकि मैं अपने स्टेप्स काउंट कर सकती। लेकिन वेल मैंने भी एस्टिमेटेड टाइम से किया है। आई होप इट शुड बी फाइन। और यस दैट प्रीटी मच इट इज़। माशाल्लाह हवाएं ऐसी तेज़ हैं, आज पता नहीं क्या है बाहर। मोहम्मद ईट, कम ऑन मोहम्मद। और अगर आप लोगों को कभी भी क्रेविंग हो रही हो फ्रेंच फ्राइज़ या फ्रेंच फ्राइज़ नो चीज़ एंड अनियन क्रिस्प या कोई भी ऐसे क्रिस्प खाने की क्रेविंग, तो ऑनेस्टली ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें स्पाइसी अपनी मर्ज़ी से डालें, खुद बनाएं और मज़ा करें। बाहर से मैं कहती हूँ अनहेल्दी लेके खाने की ज़रूरत ही नहीं, अगर आप ये बना के खुद घर खाएँ तो। आप ये so can मेरा खाना बड़ा टेस्टी नहीं आया ना। जी फ्रूट There you go, Mohammed. Mohammed, yeah there you go. फिर मैंने बनाई सबके लिए चाय, बिकॉज़ पापा लेके आए थे जलेबियाँ और कुछ स्वीट्स। तो फिर मैंने कहा चाय के बगैर तो फिर ये इनका कोई टेस्ट ही नहीं होगा, तो फिर मैंने वो बनाई, सब ने चाय वगैरह पी। और जी यही इस व्लॉग का एंड था, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।